Hello friends, at last we have discussed about the first use of dimensional formula in the sense to derive the relation between two units of given physical quantity, means for the MKS and CGS, that we know the very well about the relation between two units of the given physical quantity. Just if we remember, then we can say for the force 1 Newton is 10 raised to 5 Dang, except for the work or energy 1 joule is equal to 10 raised to 7 Earth. This is the relation between two units, one MKS, another is a CGS of given physical quantity. Now about the second use of the dimensional formula, we have to check the dimensional validity of the given equation. The dimensional validity means the given equation is valid or not, given equation is right or wrong, that we can say from dimensional formula. कि डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सेम हो गया, देन वी कैन से इट इज डायमेंशनली वैलिड एज पर द एग्जांपल. सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया कि जस्ट चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्रेशर P is equal to rho GH, where rho is density, G is gravitational acceleration, and H means height. प्रेशर की इक्वेशन कुछ ऐसी दी है. राइट नाउ वी नो द प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. अगर ऐसे कुछ दे, वी कैन से द प्रेशर द फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला उसकी सही है. बट इफ प्रेशर की इक्वेशन कुछ ऐसी दे दे कि P इज इक्वल टू रो GH, नाउ वी हैव टू चेक इट, दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, सही है कि गलत है, डायमेंशनली वैलिड है कि नहीं. देन जस्ट use the dimensional formula of all quantities. We will treat as a left hand side, this one is right hand side. Then we can say for LHS, the dimensional formula in short form I am writing DF, the dimensional formula of pressure. तब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है M1 L minus 1 T minus 2. Say as equation number 1. Now for the RHS, the dimensional formula of rho GH, यहाँ पर तीनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है. Then we will write all quantities dimensional formulas also in multiply के terms में. Now the rho is the density. The density का dimensional formula याद होना चाहिए, M1 L minus 3 T0. G is the gravitational acceleration. Acceleration और gravitational acceleration same. That's why it is M0 L1 T minus 2. The unit is meter per second square. Now for the height you can say length, distance, whatever it is, dimensional formula is M0 L1 T0. तब अब अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, लेकिन ये तो दोनों जीरो है M से रिलेटेड, तो यहाँ पर हुआ M1 L का -3 1 and 1, तो 1 plus 1 2, -3 plus 2 it is -1, and for the D 0 है, -2 और 0 है, मतलब -2. Equation number 2. Then from equation 1 and 2 we can say LHS is equal to RHS. That's why given equation P is equal to rho GH is dimensionally valid.
गिवन इक्वेशन इज राइट, तो ये जो फॉर्मूला है वो आगे जाके हम प्रॉपर डिराइव करेंगे इन द चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी विल डिराइव दिस इक्वेशन कि P इज इक्वल टू रो जी एच. फिजिक्स के लॉज यूज करके, उसके कॉन्सेप्ट यूज करके वी विल डिराइव दिस इक्वेशन. बट हियर इन प्रेजेंट चैप्टर वी डोंट नो द perfect reason, perfect science behind the how the pressure P is equal to rho GH. तब ये इक्वेशन सही है कि गलत है, जस्ट चेक इट थ्रू डायमेंशनल फॉर्मूला. अगर दोनों का सेम आ जाए देन वी कैन से इट इज डायमेंशनली वैलिड. आगे जाकर फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको हम प्रूफ करेंगे, वो वहाँ पर है. यहाँ पर ओनली हमें चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग. देन वी कैन से द प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, मतलब प्रेशर का एक फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. नाउ द सेकंड इक्वेशन इज रो जी एच. दोनों फॉर्मूला राइट है. नाउ इफ वी गो फॉर द सेकंड एग्जांपल ले कि इफ द इक्वेशन ऑफ फोर्स कि फोर्स F इज इक्वल टू mv square upon r. The given equation is right or wrong, where m is equal to mass, v is equal to velocity and r is the radius. In the sense रेडियस दिया मतलब कहीं ना कहीं कोई सर्कुलर पाथ होगा, ऐसे कहीं कोई भी पार्टिकल ऑफ मास m moving on a circular path of radius r with velocity v, then उसकी कोई फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r जैसी बनती है कि नहीं, कि गिवन इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग. देन द सेम थिंग फॉर द LHS वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, तब डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, इट इज m1 l1 t minus 2. Say as a equation number 1. Now for the RHS, the dimensional formula of mv square upon r. Then यहाँ पर मास से रिलेटेड, फिर v से रिलेटेड, यहाँ पर स्क्वायर है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्क्वायर आएगा, और नीचे r से रिलेटेड. अब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मास, तो मास का तो m1 0 वाला पार्ट ना लिखो तो भी चले, लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली m1. नाउ फॉर द वेलोसिटी जस्ट रिमेंबर द यूनिट मीटर पर सेकंड, दैट्स व्हाई l1 t minus 1 and radius r is either measured in meter centimeter, that's why l1. अब यहाँ पर ये तो m1, यहाँ पर पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई L2 t minus 2 अपॉन L1. मास तो एक ही है, m1 L2 है, नीचे L1, ये ऊपर आएगा तो -1, 2 minus 1 1 and t minus 2. Say as a equation number 2. From equation 1 and 2 we can say that this dimensionally valid LHS is equal to RHS, then given equation is valid. By the same way, अगर हम कोई भी एक ऐसा कर दे कि ऐसा बोल देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट d is equal to v naught t plus half a t होल स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन दी है हमें कि d is equal to v naught t plus half a t square, where v naught is initial velocity, t है वो टाइम, a is एक्सेलरेशन. नाउ अब यहाँ पर एक अलग से
ध्यान से देखो, हियर 3 पार्ट्स आर देयर फॉर द डी, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही डी, इन राइट हैंड साइड 2 आर देयर, या प्लस में हो कि माइनस में हो, आइदर इन क्वांटिटी और इन मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट जो हमने आगे किया वो डायरेक्ट कर सकते हो, बट आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी विल डिवाइड दिस, मतलब एडिशन वाला जो भी पार्ट है इसको हम 2 पार्ट में बोलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट वी नॉट टी एंड सेकंड पार्ट इज हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इंडिपेंडेंटली इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। वंस अगेन, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हमें क्वांटिटीज दे रखी है वो सभी का इंडिपेंडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। फिर यहाँ पर एडिशन हो कि माइनस हो, डजंट मैटर, प्लस माइनस मैटर नहीं करता, बट जो भी इक्वेशंस है वो इंडिपेंडेंटली डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। चलो अब उसके लिए देखें तो फॉर LHS we can say dimensional formula of D displacement, then it is m0 L1 T0 says equation 1. Now RHS में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V नॉट टी, क्योंकि एक स्टेप हुआ ये, तो V नॉट टी, तो ये V नॉट का और यहाँ पर ये T का, यहाँ पर बोलेंगे इट इज m0 L1 T-1, T के लिए जस्ट राइट डाउन ओनली T1, तो ये T1 और ये T-1 बेस सेम है तो पावर 8 होगा, मतलब 0 हो गया, m0 L1 T0। इक्वेशन नंबर 2, अगर 1 एंड 2 सेम आ गया तो ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम कि डायमेंशनल दिस इक्वेशन इज वैलिड, जस्ट चेक द थर्ड पार्ट ऑल्सो, दैट्स व्हाई ये बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ ए टी होल स्क्वायर, देन हाफ जो भी कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है, 2 है, हाफ है, 1/3 है, 4/3 है, 2/3 होगा, वो सभी डायमेंशनल उसका फॉर्मूला नहीं होता, डायमेंशनलेस, तो सिर्फ इसी का ही। अब उसमें भी जो 80 है उसका होल स्क्वायर है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला में भी स्क्वायर करेंगे। अब जस्ट रिमेंबर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स व्हाई L1 T-2, T का ओनली T1। तो पहले इसको अंदर, पहले इसको सॉल्व कर दो, फिर स्क्वायर कर देंगे, तो L1 this is T-1। now power of power multiply L2 T-2, equation number 3। now just see the equation 1, 2 and 3, 1 and 2 सेम है, थर्ड जो है वो इक्वल नहीं है, मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट वैलिड, वी कांट से हाफ वैलिड और हाफ इनवैलिड, ऐसा कोई हाफ वैलिड हाफ इनवैलिड ऐसा कोई भी आंसर नहीं होता, either valid or invalid, then given equation is invalid, we can say from equation 1, 2 and 3 D is equal to V naught T plus half AT whole square is not valid, जो भी इक्वेशन है वो वैलिड नहीं है। आया समझ में कि वन मोर टाइम कि आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जितने भी क्वांटिटीज है मल्टीप्लाई में वो एक साथ रहेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसको अलग कर दो और इंडिविजुअली डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, एक पार्ट का हुआ दूसरे पार्ट का नहीं हुआ, देन डायमेंशनली नॉट वैलिड।
तीन जो होंगे 1 2 एंड 3 बोलेंगे यहाँ पर, तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम, मतलब दोनों का सेम विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो इन प्रेजेंट केस इट इज नॉट वैलिड। अब इसी इक्वेशन में हम ऐसा कर दे, देखो ध्यान से देखो, अगर इक्वेशन कुछ ऐसी दे दे तुम्हें कि हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब यहां तक तो सेम रहेगा। देखो आगे की इक्वेशन और ये इक्वेशन में कितना डिफरेंस है, उसमें होल स्क्वायर था और इसमें सिर्फ टी का स्क्वायर है, हाफ ए टी स्क्वायर। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन मतलब m0 l1 t माइनस 2, यहाँ पर स्क्वायर है और t1 ही होगा, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई 2 होगा, ये t2 और माइनस 2 से 0 हो गया, मतलब m0 l1 t0, इक्वेशन नंबर 3। देन 1 2 एंड 3 तीनों सेम है, तो अगर तीनों सेम है तब बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड गिवन इक्वेशन इज वैलिड। क्लियर? तो ऐसे जो भी हमें क्वांटिटीज दी है, तो ऐसी तुमने एक इक्वेशन जो है वो शायद 9th स्टैंडर्ड में कर रखी है फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ये जो इक्वेशन है वो सही है, आगे वाले में पूरे में स्क्वायर था, वो इक्वेशन इनवैलिड है।